Good morning, members. Previously, we have discussed in the last three videos the MCQs basically for the specifically for the IBBI or RVU examinations, which is for registered valuer, but this can be used otherwise also in different type of exams for fixed income securities chapter. Right now, I'm further discussing the questions from 106 onwards. So please listen to these questions very carefully. Some of them are very important for the examination purpose. The first question for the day is the concept that money available now is worth more than the same amount of money available in the future due to the fact that money available now can be invested and thereby increased on the future is called टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि आज पैसे की कीमत ज्यादा होती है रादर देन इन फ्यूचर बिकॉज रिसीव टुडे वी आर हैविंग एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव रिटर्न दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी और द डिस्काउंट रेट दैट यू यूज जनरली कैन आल्सो बी नोन एज द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन. Then question number 107 quickly is a high risk high yield bond rated below investment grade जिसके लिए क्रेडिट रेटिंग नहीं ली जाती. हाई यील्ड पहले भी ऑलरेडी एक बार कवर हो चुका है. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड जंक बॉन्ड जिनके ऊपर ज्यादा रिटर्न होती है. इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा यील्ड पे रखा जाता है इनको ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होकर इस पे पैसा लगा दे. बट इनके लिए कोई रेटिंग नहीं होती. कोई इनको इन्वेस्टमेंट में करना कभी भी प्रेफर नहीं करता बेस्ड ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क. थर्ड, bond has an interest payment contingent on sufficient earnings of the firm. Already discussed, again asked in a different manner in third part of this particular series is called income bond. अगर आपको इनकम होगी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं कंपनी को इनकम होगी, इश्योर को इनकम होगी तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. बेसिकली योर इनकम और द कूपन रेट डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग ऑफ द कंपनी. देन is a person or institution designated by a bond issuer as an official representative of the bondholders. Already discussed bond trustee. Again, this is a repetitive question. I'll not take much of your time. Is a long-term unsecured instrument with a lower claim on assets, income, and other class than other class of debt. Basically called subordinate debentures. इन सबऑर्डिनेट डिवेंचर्स को पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं जिनका सेकंड नंबर पे क्लेम होता है बट फिक्स रिटर्न्स एंड ऑल एवरीथिंग इज टोटली सेम विद द डिवेंचर्स बट दे आर सबऑर्डिनेट टू द मेन डिवेंचर्स इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट डिवेंचर्स. इज द रिटर्न दैट अ कंपनी प्रोवाइड्स टू अ डेट होल्डर्स और क्रेडिटर्स. जो डेट होल्डर्स को रिटर्न मिलती है उसको हम लोग इज द रिटर्न दैट कंपनी प्रोवाइड्स टू इट्स डेट होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स is can be called as interest, can be called as cost of debt. If it can be read from the perspective of company, then it can be read as cost of debt. If it has to be read with the perspective of investors, so it can be also read as interest or coupon payment. But as the answer suggested is cost of debt, you can remember this particular answer even if the answer can be interest also. अर्निंग बिफोर टैक्सेस इज जनरल क्वेश्चन. अर्निंग बिफोर टैक्सेस तक आप लोग जनरली कैलकुलेशंस में किस तरीके से पहुंचते हो? आप लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन सब चीजें जब माइनस करते हो, टैक्स नहीं माइनस करते हो, दैट इज कॉल्ड ईबीआईटी, सॉरी ईबीटी बेसिकली. और वाइस वर्सा इज रिटन एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से इफ यू रिड्यूस द इंटरेस्ट देन यू विल गेट द ईबीटी बट बिफोर रिडक्शन ऑफ टैक्सेस. एंड लास्ट इज नेट इनकम इफ यू आर अवेलेबल. Then if from net income you add up the tax, then it will be earning before taxes also. The correct answer is all of the above. The spread between treasury securities and non-treasury securities that are identical in all respects except the quality rating are called credit spread. This is a theoretical question, must be remembered. जो treasury securities हैं और non-treasury securities हैं उनके बीच जो डिफरेंस होता है अदर देन रेटिंग इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड. हाउ मच इज द क्रेडिट स्प्रेड बिटवीन दीज टू सिक्योरिटीज? द नॉर्मल फ्लक्चुएशंस of the economy between periods of expansion, that is growth, or रिसेशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक साइकिल. जिस तरीके से इकोनॉमीज, जैसे आजकल आप लॉकडाउन की सिचुएशंस में हैं तो हम लोग चेक करते हैं कि यार आजकल रिसेशन आया हुआ है, कभी वो ऊपर चली जाती है, कभी वो नीचे आ जाती है इकोनॉमीज, है ना. तो इस तरीके से जो एक साइकिल चलता रहता है इसका, दिस साइकिल इज कॉल्ड इकोनॉमिक साइकिल. इट इज नॉट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इट इज नॉट द रेंज. दिस पर्टिकुलर साइकिल इज कॉल्ड इकोनॉमिक साइकिल.
Volatility is measured, already discussed in options chapter also. Volatility measured in sigma, standard deviation or volatility, है ना. Arbitrage you can earn. Arbitrage is again discussed earlier in one of the parts or series is of this particular series, is called generating of riskless profit. Written very rightly, positive income, that is you are having some income but with a zero rise. Rise nahi word hoga, this should be risk. Without risk, if you want to generate some return, that type of techniques are called arbitrage techniques. Then elimination of riskless profit opportunities in an future market is arbitrage. This word, the best of my mind, should not be elimination, this should be earning of riskless profit. This is kind of a misprint. Earning of riskless profit opportunities in the future market is called arbitrage. Now the next part of a different chapter starts, that credit rating of different type of bonds. अलग अलग बॉन्ड्स की क्या क्या क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं. क्रेडिट रेटिंग्स का सर बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि जो आपके कुछ एजेंसीज बनी हुई है, क्रिसिल हो गई, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गई, मूडीज हो गई, ये आप लोगों के बॉन्ड्स की क्या देते हैं, क्रेडिट रेटिंग. क्रेडिट रेटिंग देते क्यों है सर हम लोगों को, ताकि एक इन्वेस्टर जिसको उसका टेक्निकल नॉलेज ज्यादा नहीं है, वो उस बॉन्ड की इवेल्युएशन कर सके कि इसमें मेरा पैसा कितना सेफ रहेगा. अगर किसी बॉन्ड की एक क्रेडिट रेटिंग है फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए, तो उसमें सबसे ज्यादा आपका पैसा जो है वो हाईएस्ट लेवल है कि ये कंपनी कभी डिफॉल्ट कर सकती है. सबसे बेस्ट रेटिंग इज ट्रिपल ए, द वर्स्ट रेटिंग इज डी. दैट मींस डी रेटिंग बेसिकली शोज कि ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रही है कंपनी, ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुकी है. ठीक है, तो ऑलरेडी इन डिफॉल्ट कंपनी को हम डी बोलते हैं, जो बहुत रेयर चांस है इसका डिफॉल्ट करने का, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल ए. ऑल द क्रेडिट रेटिंग्स विल बी इन बिटवीन देम. In the next MCQs we are going to discuss the same. Some theoretical questions. CAMEL model stands for capital assets management earnings liquidity. Must be remembered, it is not the three balance answers. Then credit rating is an expression of opinion of an agency regarding a debt instrument on a specific date, depends on the स्पेसिफिक डेट डिपेंड्स ऑन रिस्क इवेल्युएशन. जिस टाइम पर आप उसको रिस्क इवेल्युएट कर रहे हो, उस टाइम पर उस पर्टिकुलर स्टॉक में, उस पर्टिकुलर बॉन्ड में कितना रिस्क है, उसके बेस पर आपकी जो रेटिंग जो है वो बनाई जाती है. रिस्क इवेल्युएशन की डेट पर हम चेक करते हैं कि आज इस चीज में, इस पर्टिकुलर बॉन्ड में कितना रिस्क है, ताकि उसके हिसाब से अगर ज्यादा रिस्क है उसमें, फिर भी कोई इन्वेस्टर लगाना चाहता है पैसा, तो ही एटलीस्ट डिजायर अ हायर रिटर्न. उसके ऊपर उस कंपनी को, उस इश्यूर को ज्यादा कूपन रेट जो है वो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, ज्यादा यील्ड जो है इन्वेस्टर को देनी पड़ेगी टू अट्रैक्ट देम टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर लोअर रेटिंग बॉन्ड. और जिनके ऊपर रेटिंग मिलती ही नहीं है वो आपके जंक बॉन्ड्स होते हैं ना, बट उनके ऊपर हाई यील्ड जो है वो देनी पड़ती है. Which of the following is not a measure to reduce risk in a derivatives? कोलैटरलाइजेशन करके, डाउन ट्रिगरिंग करके और नेटिंग करके, ये तीन टर्मिनोलॉजीज डेरिवेटिव्स में जनरली यूज होती हैं. कोलैटरलाइजेशन से तो हम लोग समझते ही हैं कि हम लोगों ने कोई कोलैटरल रख लिया तो उससे ऑब्वियस सी बात है रिस्क कम हो जाएगा, है ना. तो ये पूछा किससे नहीं होता है. नेटिंग कुछ एक तरफ को पोजीशन ली तो दूसरी तरफ को ले ली, तो जिससे नेट होगी पोजीशन. एक मान लो ऐसी है कि जैसे रेट बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा और कम होगा तो नुकसान हो जाएगा, तो एक वाइस वर्सा पोजीशन ले ली, नेट ऑफ कर लिया अपने पोजीशन को, तो उससे भी रिस्क कम हो जाता है हमारा, है ना. एक डाउन ट्रिगर कि जैसे उससे, अब हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी खरीदी, उसमें नीचे जाएगा रेट तो उसके ऊपर एक ट्रिगर लगा दिया हम लोगों ने, जो अपग्रेड ट्रिगर कोई वर्ड ही नहीं होता. अपर ट्रिगर जरूर होता है एक वर्ड, बट अपग्रेड ट्रिगर नाम का कोई शब्द नहीं होता, जो हम लोगों के पास एक एक्सेप्शन है कि ये कोई टेक्निक नहीं है उस रिस्क को कम करने के लिए. अगर मेरे पास लगता है कि रिस्क ज्यादा हो सकता है, तो हम लोगों ने एक उसके ऊपर अपर और लोअर ट्रिगर लगा दिया. अपग्रेड ट्रिगर नाम की चीज कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती. A description. Now it basically the question started that basically denotes the ratings of the bonds. अब A क्या बोलता है, डबल ए क्या बोलता है, ट्रिपल ए क्या बोलता है, सबसे सेफेस्ट, सबसे मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर बड़ा रेयर चांसेस आर देयर टू डिफॉल्ट आर कॉल्ड ट्रिपल ए. तो A is basically denotes the capacity to pay interest plus principal slightly suspectively टू एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशंस. अगर जैसे आजकल लॉकडाउन है ये वो, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन रही तो शायद हमें वो रिटर्न जो है वो नहीं मिल पाएगी एक इन्वेस्टर को. अगर मैं बोलूं कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज हाई, दिस वुड बी डबल ए एंड हाईएस्ट वुड बी ट्रिपल ए, है ना. कैपेसिटी टू पे प्रिंसिपल इज हाई,
एंड लास्ट इज कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट इज हाई बट प्रिंसिपल इज लो। दीज टाइप ऑफ डिफरेंट, ये आप अगर चाहो तो याद कर सकते हो इन चीजों को, अगर अदरवाइज जब आप एमसीक्यूज इतने सारे पढ़ लोगे तो उससे ही ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी, डोंट वरी। देन इट सेज ट्रिपल ए डिस्क्रिप्शन, अब एक एक करके सारे आ जाएंगे। ट्रिपल ए क्या शो करता है? कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल स्लाइटली सस्पेक्टिवली, दिस इज बेसिकली ए। So capacity to pay interest plus principal is high, this is triple A. Capacity to principal is high and all these are again the lower ratings. Which of the following is incorrect regarding the credit risk in a derivative? Derivatives are unsecured and junior line security. Credit risk in derivatives are easy to measure. Credit risks in derivative securities are not at all easy to measure, rather very difficult to measure कि इसमें कितना रिस्क है, क्योंकि इनके जो प्राइजेस हैं वो किसी और अंडरलाइंग सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, और उस अंडरलाइंग सिक्योरिटी के प्राइस में क्या वेरिएशंस होंगी ये पता लगा के इसकी वेरिएशंस का पता लगाना इज वेरी टफ। ठीक है, तो जो भी आपकी कॉल्स हैं, पुट्स हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं, ये उनकी वैल्यूएशन करना इज वेरी टफ जॉब। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैज क्रेडिट रिस्क ओनली व्हेन इट एसेट्स, ये आपकी 100%, बाकी जो स्टेटमेंट्स है तो आर नॉट 100% करेक्ट। अनसिक्योर्ड से पहले वाला ठीक है और जूनियर लाइन सिक्योरिटी नहीं है, तो ईदर ऑफ द पार्टीज में कुछ ना कुछ दिक्कत है, पर ये इजी होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, और हमसे यही पूछा हुआ है कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है ना, तो बाकी तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ज्यादा। 124th of bonds is a system of evaluating the probability of whether a bond issuer will default। अभी अभी डिस्कस किया कि क्या वो बॉन्ड इश्यूर आपका डिफॉल्ट करेगा या नहीं, उसकी रेटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन या रैंकिंग नहीं होती, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट रेटिंग। द फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया वाज क्रिसिल, ठीक है, CRISL, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाकी उसके बाद की हैं केयर, उसके बाद है ICRA, उसके बाद है स्मेरा, उसके बाद है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ ओनली कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यूर और ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यूर ना, दोनों के लिए ये बिल्कुल इसके दायरे दोनों के लिए बिल्कुल ओपन होते हैं कि आप चाहे नॉर्मल बॉन्ड्स की क्रेडिट रेटिंग पता कर लो, चाहे आप लोग गवर्नमेंट के बॉन्ड्स की पता कर लो। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए डिनोट्स एक्सट्रीमली अनलाइकली टू डिफॉल्ट, उसका अनलाइकली टू डिफॉल्ट, likely to default and currently in default, ये D है, currently in default is D। ठीक है, तो extremely unlikely to default is the best rating, that is triple A। क्रेडिट रेटिंग D denotes, अभी अभी मैंने आपको बता दिया, currently in default, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट में आ चुकी है कंपनी। Which of the following bonds are not considered to be investment grade, अभी भी डिस्कस किया था मैंने आप लोगों के साथ, जंक बॉन्ड्स होते हैं वैसे तो ये, ठीक है, अगर वैसे सॉरी इन्वेस्टमेंट ट्रेड में नहीं आते हैं, जिनको की रेटिंग ही नहीं मिली होती, बट अगर वैसे बोला जाए S&P और मूडीज की रेटिंग के अकॉर्डिंगली तो ट्रिपल बी और बिलो को इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं माना जाता। अगेन दिस इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट, मस्ट बी रिमेंबर्ड, जो भी मूडीज के और S&P की रेटिंग्स हैं उसमें ट्रिपल बी या उससे नीचे की जो भी रेटिंग्स हैं उनको कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं मानते हैं। उसके बाद S&P has given a AA rating to a corporate bond SR2 of L&T Infrastructure Limited। This indicates that AA, क्या इसमें रिस्क होगा और या कम होगा? इसमें बहुत कम रिस्क होगा कि ये डिफॉल्ट करेगा। सो बट ट्रिपल ए से नीचे है, इसलिए सॉरी, अगर ट्रिपल ए से नीचे है तो इसमें द फर्स्ट ए आंसर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, दिस इज ट्रिपल ए। So very strong capacity to meet financial commitments is double A। स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी ये सिंगल ए आ जाएगा हमारे पास, एडिक्वेट कैपेसिटी फिर बी में जाना शुरू हो जाएंगे हम लोग। द S&P हैज गिवन CCC रेटिंग, ये अच्छी रेटिंग है खराब है? खराब रेटिंग है सर। CCC रेटिंग टू द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टियर 2 issued by the Reliance Infrastructure that indicates डिपेंडेंट, कोई वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, एडिक्वेट भी नहीं है, इवन डिपेंडेंट ऑन द फेवरेबल बिजनेस फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशंस टू मीट द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, बड़े सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। द मूडीज हैज गिवन ट्रिपल ए रेटिंग, मूडीज वाले में डबल ए, एक पहला कैपिटल लिखे तो आगे स्मॉल लिखे जाते हैं, उनमें कैपिटल लिखे जाते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेटिंग इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एसआर एंड बॉन्ड्स आर इंडिकेटेड एज, अगर ट्रिपल ए है तो लोएस्ट क्रेडिट रिस्क एंड हाईएस्ट क्वालिटी, सबसे कम रिस्क है और सबसे ज्यादा इसमें क्वालिटी मिलेगी आपको। फिर आया ट्रिपल B1, रेटिंग ऑफ इंडियन रेलवे इज नॉट लोएस्ट, ठीक है, नॉट
वेरी हाई क्वालिटी, बट बी में चला गया, हाई क्वालिटी रहते हैं आपके ए में, मीडियम क्वालिटी रहते हैं आपके बी में, एंड देन इन सी। तो बी में कहता है कि मीडियम ग्रेड है विद सम स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स एंड मॉडरेट क्रेडिट रिस्क। द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड अफेक्ट्स, अगर क्रेडिट रेटिंग आपकी हिलेगी तो इंटरेस्टेड भी उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज को रखने पड़ेंगे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट एपेटाइट, इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितना इन्वेस्ट करना चाहता है, वो भी हिलता है। बॉन्ड प्राइसिंग, ऑब्वियसली बात है, अगर आपके कूपन रेट सील्ड्स चेंज होंगी तो बॉन्ड प्राइसेस तो चेंज होगा ही होगा, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following is correct statement? The lower the rating, the higher the yield is the correct statement. जितनी रेटिंग कम होती जाएगी उतना इन्वेस्टर का विश्वास कम होता जाएगा, विश्वास कम होता जाएगा तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही वो अट्रैक्ट होगा आपके पास पैसा लगाने के लिए, अदरवाइज वो कभी भी नहीं होगा उसका। या वाइस वर्सा बोल रहा तो रिस्क जैसे बढ़ता जाएगा उसकी एक्सपेक्टेशन भी साथ साथ बढ़ती चली जाती है। Which of the following factors considered by the credit rating agencies while rating the bonds? Everything that is relevant for the financial position is considered by the credit rating agencies. That is basically the balance sheet strength, the payment strength, and the future economic also. Past ही नहीं देखना है, future की situations भी देखनी है, all of the above. Then it comes a credit rating once given to a corporate bond. क्या ये एक बार अगर दे दी मान लो मैंने, तो क्या अब ये बॉन्ड जो है वो बिल्कुल सही ऐसे ही रहेगा ना, इसकी क्रेडिट रेटिंग डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस कैन आल्सो बी चेंज्ड एट एनी टाइम टुवर्ड्स अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड। देन bonds which have not received credit rating is called junk bonds। तो इनको हम लोग जंक बॉन्ड्स बोलते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एम्बेडेड ऑप्शंस। इन द मीन टाइम यू कैन सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल टू रिसीव all these updates and practice these questions before going to exam।